we were not imagining that it will go viral like this. Within few days, it reached about 350K views. सिर्फ घर में and सिर्फ families cannot only keep you sane. What Exactly. I feel being a woman, you should also move out, work for yourself, feel independent, and that's what my life revolves around. Are you real or real? The portrait that we have created of me or any face that is coming on Modern BB, that is what represents us and me especially. Should not be influenced by what they see on social media. That's what I suggest. So I'm not an influencer, I'm just an artist. हम एक शूट भी करते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं लोग उसे देखकर कि 30 सेकंड्स में हंस रहे हैं और उसमें इतना फ़न है, इतना अच्छा एलिमेंट आ रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट ये नहीं पता कि उससे पहले कितने रीटेक्स हुए थे उस चीज़ के लिए कि नहीं यार मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ और हो नहीं रहा है. तो आपको यू हैव टू हैव गुड पीपल ऑल्सो अराउंड यू टू कीप मोटिवेटिंग. किसी के साथ देने से या किसी के साथ सही टाइम पे खड़े होने से कुछ ख़राब नहीं होता. Hey, we are here because modern BBR wines are trending. Let's get into their vibes and get to hear about her quick success on Instagram. I welcome Amanpreet Kaur on my podcast, All That She Wants. Hi, I'm Amanpreet and I'm here at Joey's podcast to tell you about how we succeeded on Instagram and what our journey was all about and many more questions that you guys have and she's talking about. Definitely, I'm looking at a fun and a lot of learning to people out there. So let's make it more interesting. Yes, sure. So before we start, Amanpreet, I would like to know a little bit about you, the person outside Instagram. Okay, so I'm a person, as you know by the name Modern BB, we started as. So I'm a person who's very old school, you would say, and a very BB at heart. Because being a millennial as well, that has given me that effect. But in this modern world, I'm trying to cope up with the generation, with the pace, with everything. So that's how I am. So you are in par with them? I'm trying to be, not really, but I hope I'm getting quite closer now. Okay. So are you real or real? I'm a real person. You're a real Yeah. person. So What you see me on the camera, that's actually also real, I would say, because the portrait that we have created of me or any face that is coming on Modern BB, that is what represents us and me especially. So that's the real me. I should say you're a very accommodative person. I really look up to you. In a very short notice, you were here and you were ready to do an episode with me. Thank you That's so much. Thanks to you for calling me here. That's a big thing for me as well. That coming where we started, we did not vision this thing coming out, but yes, that's a big thing for me. So, what inspired you to start Modern BVR? Was it a plan and you had a strategy for it? Not really. So we have another brand by the name Kinari. So we had an Instagram page for that, and that was an apparel brand. And I've been running that brand for last 7 years. And on that page, this was coming up, but the page was not going viral, I would say. So just like for fun, we created a very entertaining video of two women sitting with the dupatta and sunglasses on, and they just created a Punjabi song video and which went viral. We were not imagining that it will go viral like this. Within few days, it reached about 350K views, and then even I did not have a look at it because it went down. So one day we were just sitting and my husband had a look at my Instagram page and he saw that the video was going viral. He was like, why don't you do this like permanently and create content like this? I was like, no, I'm not confident enough to do this anymore. That's not
how we can do it. So, but he said, no, let's do it. And that's how he created the page, not me. Okay. And we discussed that what should be the name of the page, and it just randomly came in that why not Modern BB. So Modern BB has started from there itself, and then we started posting, and this things went well for us. Okay. That's an interesting journey how it got started. Um, who has been your support and the pillar to the entire journey of modern BVR? I would say my husband, yeah. Okay. So the supporter, pillar, one of the creators, and even the strategist today behind the page, how he is the one I look forward to for every business that I look up to from the page or anywhere, in fact, in my life. And anything that I have to take a decision on or anything I have to discuss, my go-to person is him. So, do you think or your life revolves around him? I revolve life around my work and family. Okay. So that's how it is. Because I keep my work equally balanced because I feel sane when I'm at work. So if I'm shooting, I am doing any business meetings or anything, I feel more peaceful, more sane. So I keep a balance of both because सिर्फ घर में and सिर्फ families cannot only keep you sane. What Exactly. I feel being a woman, you should also move out, work for yourself, feel independent, and that's what my life revolves around. So, you have always thought about being in fashion industry or you had some other plans? No, so I started as a cabin crew. I passed out of hospitality college, Okay. and then I was never a person who wanted to be in fashion, or I even never thought that I will be here someday as a content creator or an artist. But things went in flow, and it just happened. And now that I'm here, I love fashion. I Okay. love styling up, and because being in outfit industry from last 7 years, I've been creating outfits, apparel for various people. So I've liked styling them more rather than just creating an outfit for a person. Okay. So if styling is a part of fashion industry, yes, I am into fashion now. So now you have given multiple names to yourself. So how do you identify yourself as an influencer, a creator, or a businesswoman? As of now, being a face of modern VB, I will say I am an artist because Okay. that is what is entertaining people. बिकॉज बिजनेस तब आएगा जब आप एक अच्छी परफॉर्मेंस एंटरटेनमेंट एक अच्छा आर्टिस्ट बनेंगे तभी बिजनेस आएगा आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट तो Okay. बिजनेस एक सेकंड स्टेप है आई एम एन आर्टिस्ट फर्स्ट आई एंटरटेन Okay. people and there from there I generate business. I would not say that I'm an influencer because I really don't want to influence people because a lot of things that happen on the camera that you see as real is not a real thing because what you see in 2 minutes or maybe 30 seconds or 15 seconds is there goes a lot behind that. So they are just 20 seconds out of 24 hours of my life of a day. So that's not real. So one should not be influenced by what they see on social media. That's what I suggest. So I'm not an influencer. I'm just an artist. That's what I do. So, but today we see there are a lot of people who call themselves as influencers and creators, and a lot of people are actually picking up from what they are seeing. What do you have to say about people who are creating fake life for others? I feel it's their job to do that. They have made themselves because the social media thing has prepared them to be like that. But as a person in the community who's watching them should not be influenced. They should understand that जो आप देख रहे हो वो सिर्फ वो नहीं है जो मतलब हम एक शूट भी करते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं लोग उसे देखकर कि 30 सेकंड्स में हंस रहे हैं और उसमें इतना फन है, इतना अच्छा एलिमेंट आ रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट ये नहीं पता कि उससे पहले कितने रीटेक्स हुए थे उस चीज़ के लिए एंड ड्यूरिंग दोज रीटेक्स कितनी फाइट्स हुई थी और कभी कभी हम उस मूड से भी नहीं जाते काम करने के बट वी हैव टू डू इट बीइंग एन आर्टिस्ट. तो आप उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो. दैट्स व्हाट आई फील एंड आई विल सजेस्ट पीपल. अभी तो बहुत सारा यू मस्ट हैव सीन ऑन इंस्टाग्राम दिस न्यू थिंग हैज़ कम अप डी इन्फ्लुएंसिंग
influencing people. Yes. So this is this is why it has come up, because people are understanding most of the creators who I feel are mostly from millennial generation Yes. are coming up with these things, because they've understood that people are getting so influenced by just looking at creators, their lifestyle, their fashion, कि भाई मुझ पे नहीं भी सूट करता ना, मुझे तब भी पहनना है, मुझे वो कलर लिप शेड तब भी यूज करना है क्योंकि उस इन्फ्लुएंसर ने किया था और मुझ पे नहीं सूट करा, मुझे तब भी करना है. सो दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन पीपल, विच इज अ गुड थिंग दैट हैज कम अप दिस टाइम. सो आई विल से दैट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, कि वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल. Okay. So, is it just the creator or the influencer who plays the role, or it's also the people who are picking it up? Because you just now mentioned that हमें डिसाइड करना होता है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है. इसका मतलब ये है कि क्रिएटर को जो बनाना है और जो करना है वो करेंगे. So, how do you look at them? So I am not saying कि इसमें one part of the story is wrong or one is right. Both sides of the coin are the same. So if creator is creating that content to go viral, to go trending, but the person on the other side of the phone has to understand that this is generic, this is not a person appropriate, a person किसी एक इंसान के लिए नहीं है वो. तो आप उस चीज़ को, अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको लगता है फिट इन हो सकती है, आप उसको तभी लें. Like these days, being a mom, I see a lot of content that creators are creating regarding children की बच्चों को ऐसे डील करो, ये करो. मतलब इतना ज़्यादा there is so much of advisory, so much of ज्ञान around on the social media that how to bring up a child. But you have to understand, not all children are same, first of all. Yes. Each child is different, each brain is different. I cannot pick up all the things from social media and just start, experimenting with my child. We cannot do that. Correct. अभी तो वही बात होगी ना कि आपने ले लिया और फिर आप अपनी लाइफ में हिट एंड ट्रायल खेल रहे हो, जो चल गया वो चल गया. Rather use your brains, and what fits into your life, just pick that. Okay. So you have to be a right picker as well. ये सिर्फ Yes. क्रिएटर्स की गलती नहीं है. Definitely. Yes. आप दिल्ली से हो. Yes. अक्सर बोलते हैं राइट कि दिल्ली के लोग और दिल्ली वालों की बातें सुभान अल्लाह होती है. आगे से मीठे और पीछे से छुरी. आपका क्या कहना है इस पे? Being a Delhiite, born brought up in Delhi, and I am a Delhi lover. So मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिल्ली में ऐसा कुछ है कि people just look up to you, कि आपको ठगने के लिए देख रहे हैं. It's a very generic topic to discuss. I feel कि ये तो सब जगह ही है, not even in India, worldwide. ये बहुत ही human behavior है, कहीं पर भी हो सकता है ये तो. But हाँ, there have been instances that everyone goes through in their life. तो अगर मैं दिल्ली को फोकसली बोलूँ तो दिल्ली के नहीं, but being a artist and being working on social media and being a businesswoman as well, even I have come across a lot of people during this journey and during this era of my life where I have gone through few things कि जहाँ मुझे भी expected नहीं था कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं. बट वो दिल्ली की गलती नहीं है, दैट्स अ ह्यूमन नेचर. वो और ठीक है, लोग करते हैं एंड यू जस्ट हैव टू टेक इट कि ऐसा ही है एंड देन मूव फॉरवर्ड. दैट्स व्हाट आई फील. आप उस पर अटक नहीं सकते कहीं पर भी. आप अटके तो फिर आप वो नेगेटिविटी जो वो इंसान दे रहा है आपको, आप उसको लेके बैठ जाओगे एंड देन दैट ऑल्सो स्टॉप्स यू इन लाइफ. तो यू जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड जस्ट फॉरगिविंग दैट पर्सन. इट्स ओके. What has happened has happened. Also, there is a lot of interferences that happen in families here. दिखावटी बहुत है. It is known worldwide. Yes, it is. ये दिल्ली की ट्रेट है, मैं बोलूँगी. ठीक है, it's okay. मतलब people like showing off here because उनको लगता है कि मतलब दिखाएंगे, मतलब कहते हैं ना दिखता है तो बिकता है. तो वो वाली चीज़ है कि हम अच्छे दिखेंगे तो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे.
just opposite to a lot of other metro cities in India like Bangalore, Bombay. लोग कुछ भी पहन के निकल जाते हैं, सोचते नहीं है कि कोई हमें देख रहा होगा या कुछ सोच रहा होगा हमारे बारे में. दिल्ली में people are walking out of their house, they are very sure कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, and then लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. ये बहुत जजमेंटल है ये चीज़. और इंटरफेरेंस की बात रही तो दिल्ली में द सोसाइटी इज सच कि यू नो अगर मेरे साथ वाले घर में कुछ हो रहा है तो आई हैव टू नो दैट बिकॉज मतलब अगर आप नहीं जानते ना तो लोग तब आपको देखते हैं कि आपको नहीं पता था कि आपके साथ वाले घर में क्या हो रहा था. सो ये सोसाइटी ही ऐसी है. एंड बट दैट्स ओके, मतलब बिकॉज आई एम बॉर्न हेयर सो आई एम यूज टू, तो आई डोंट माइंड इट. बट हाँ, जो बाहर से आता है उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड होता है. आई गेट इट, बट दैट्स स्वीट ऑल्सो. यू शुड नो पीपल अराउंड यू. Yes, you should. है ना. और मतलब थोड़ी लोनलीनेस कम होती है. आपको कहीं भी ऐसा अलूफ नहीं छोड़ेगा कोई. सब आसपास आपको जानते हैं, आप बात कर सकते हो किसी से भी. यू कैन वॉक अप टू पीपल एक्चुअली, आई वुड से. मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता कि मतलब मेरे को मैं इससे बात करूंगी तो मुझे जज करेगा तो करेगा. बट आप कर सकते हो, आप बात कर सकते हो. यू कैन टेक हेल्प from people around you. You're looking for a nanny, you're looking for a maid, you can call up anybody in your society. तो ये चीज़ थोड़ा easy going भी है अगर on the other side देखो तो. पूरा झलकता है आपका दिल्ली वाला प्यार. क्या कर सकते हैं, दिल्ली से. So coming back to this, how has Instagram helped you in growing, or how does Instagram help in growing small and medium businesses, and how should one leverage it? So Instagram, I would say first and foremost thing is never ever boost your account. Okay. Never boost, never run ads unless you're running a business account. अगर आप एक आर्टिस्ट, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर अकाउंट चला रहे हो और आप चाहते हो ऑर्गेनिकली अपने पेज को ग्रो करना, आई विल नेवर, आई हैवंट, so I will not suggest you to do, because you're asking for my experience, how I have grown my page. This is how I've grown. It has been a very organic journey since day one. You have to be very stable in the content that you're creating. You have to be very consistent for at least till you reach a point that you've decided for yourself that at least till 100k or maybe till 2 lakh followers I will be consistently posting. अगर आपने अपने आप को एक गोल दिया ना तो आपको कंसिस्टेंटली उस पर काम करना होगा. एंड इफ़ यू डू दैट, ऑर्गेनिकली पेज ग्रो करेगा ही करेगा. और इस टाइम तो इंस्टाग्राम इज़ हेल्पिंग सो मच टू द क्रिएटर्स. उनका एल्गोरिदम इतना अच्छा हो चुका है कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हो, वो अपने आप आपके पेज को बूस्ट कर रहे हैं. वो मतलब पुश कर रहे हैं आपके पेज को अपने आप. यू डोंट हैव टू रन एड्स और मे बी स्पेंड मनी ऑन इंस्टाग्राम बूस्टिंग. उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इनफ. यू हैव टू बी श्योर कि मुझे ये करना है. मतलब पीपल, व्हाट आई एम सीइंग नाउ डेज इज पीपल आर ट्राइंग टू बी इन्फ्लुएंसर्स और मे बी कॉन्टेंट क्रिएटर्स. दे क्रिएट कॉन्टेंट फॉर कपल ऑफ डेज एंड दे आर लाइक कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे. बट यू हैव टू गिव सम टाइम. तो आपको 6 महीने साल तो अपने आप को देना ही पड़ेगा ना. हाँ, तो आपके केस में ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया था. हाँ, आई वुड से कंसिस्टेंसी वाज द की. Okay. So we made sure that we are posting content daily. The timing has to be perfect. Like ऐसा कुछ, मतलब मैं देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं कि मंडे को ये टाइम पे पोस्ट करो, ट्यूसडे को. वी हैवंट फॉलोड दैट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. वी हैव जस्ट गिवन अ सर्टन टाइमिंग लाइक evening or maybe morning. Between these 2 hours we will post. So the algorithm works in such a way that उसको पता है कि आपका पोस्ट इतने से इतने बजे के बीच में डेली आएगा. तो वो अपने आप कंटेंट को पुश करेगा. और उस पुश में अगर आपका कोई ऐसा एक रील या कंटेंट वायरल हो जाता है तो दैट्स योर लक. So what are your weekdays and what are your timings that you usually post? We post almost every day. From after we've reached 100k followers, we've just started posting like almost 4 days a week. Before that we were posting every day. And we used to post in the evening between 6 to 8 p.m. Okay. And did you try changing your time and see if it is working on the other timings also? Not really. We started around 5 p.m. But then because of editor and a lot of things, so we had set a time between 6 p.m. and 8 p.m. It has never been that I've started posting in the morning or in the afternoon. It just
मतलब ऐसा ही था हमेशा से और ऐसा ही रहा है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. कुछ ऐसा है नहीं कि आप आज सुबह करके देख लो, आज दोपहर को. हाँ. इफ बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर टाइमिंग्स एंड Okay. इन योर डेज, दैट इफ यू इवन यू वांट टू पोस्ट थ्राइस अ वीक, तो आप उसमें एक स्टेबिलिटी रखो, एक टाइम रखो अपने कंटेंट में. आई वुड से आपका कंटेंट भी थोड़ा सा वैसा होना चाहिए कि रिलेटेबल हो, एंड या तो इट हैज़ टू बी इंफॉर्मेटिव. There are two things that work on Instagram or even any social media page. It has to be informative or it has to be entertaining. तो आप अब कंटेंट भी ऐसा पोस्ट करिए कि जिसको लोग रीशेयर कर सकें, उसको रिलेट कर सकें, तभी आपको वो पुश मिलेगा. ओके. सो कितना मुश्किल और कितना इजी था ऑर्गेनिकली ग्रो होने के लिए? आई वुड नॉट से कि बहुत मुश्किल था. If someone who is willing to work hard to grow on Instagram or any social media platform, तो मुश्किल नहीं है. मतलब अगर आपने सोच ही लिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है और आप ये सोच रहे हो कि मतलब कि मैं तो करता ही जा रहा हूँ और ये हो नहीं रहा है बस. ऐसा नहीं है. आप अगर कर रहे हो ना तो होगा. यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइमिंग. थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा. इनिशियली आई वॉज ऑल्सो लाइक यार मेरे तो 2000 फॉलोअर्स हैं, क्या मतलब व्यूज़ भी इतने नहीं आ रहे. बट माई हस्बैंड वॉज लाइक कि नहीं, यू हैव टू वेट. देखो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा बिकॉज he already had run a page and which grew like anything within an year. So he knew it कि कैसे करना है, how to strategize the entire page, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, या कितने मतलब वीडियोस कैसी होनी चाहिए, या कितने बजे पोस्ट करना है तूने कि रोज़ करेगी तो इसी टाइम करियो. सो ही वॉज टेलिंग मी एवरी डे. और फिर आपको वो थोड़ा सा मतलब एज अ क्रिएटर या कंटेंट जब आप बनाते हो ना, तो आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हो. क्योंकि आप बना तो दुनिया के लिए ही रहे हो, है Exactly. ना. आपको वो अप्रूवल नहीं आ रहा होता ना, तो फिर आप 2-3 दिन में आप थोड़े से हो जाते हो कि नहीं यार मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ और हो नहीं रहा है. तो आपको यू हैव टू हैव गुड पीपल ऑल्सो अराउंड यू हु कीप मोटिवेटिंग यू. Okay. ऐसे लोग नहीं होने चाहिए आसपास जो बोले अरे क्या कर रही है यार तू, मतलब बना रही है, कोई देख तो रहा नहीं. यू हैव टू हैव पीपल, गुड पीपल अराउंड यू हु मोटिवेट यू एवरी टाइम कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन और हो जाएगा. एंड इट रियली वर्क्स. मेरे को ये आपकी लाइन बहुत पसंद आई. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब इनिशियली आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी स्टार्ट करते हो, आपको थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ता है. ये मेरा पेज है, इसे प्लीज़ फॉलो करो. ऑब्वियसली अपने क्लोज्ड वंस होते हैं, राइट. और उनको बोलते हैं आप स्प्रेड कीजिए. शुरू में फॉलो तो कर लेते हैं, बट वो अपने ही पहले होते हैं जो पहले आपको अनफॉलो करते हैं. सो ट्रू, ऐसा होता है. सो यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, साथ देना और मोटिवेट करना. सो आप सोच लो ना कि वो लोग फिर आपके टाइम और आपकी लाइफ के लायक नहीं थे, है ना. वो आप दे आर नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ. जो आपके ऐसे टाइम में ही आपके सपोर्टर नहीं थे, आपके मोटिवेटर नहीं थे, व्हाट इज़ द पॉइंट कीपिंग सच पीपल इन योर लाइफ. एग्जैक्टली. है ना. मतलब ऐसा कोई डाउनफॉल नहीं है, ये कोई डाउनफॉल नहीं है कि आपका पेज ग्रो नहीं कर रहा, बट यू जस्ट नीड अ सपोर्टर अराउंड यू. एक आपके साथ कोई खड़ा भी हो ना मॉरली, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. ऐसे मतलब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई आपको रोज़ बस देख रहा और इतना अप्रिशिएट कर रहा, हाँ आई जस्ट सॉ योर वीडियो. आपको ये तो नहीं बोला कि जाके ज़बरदस्ती शेयर करो मेरी वीडियो को या मुझे फॉलो करो. बस एक अप्रिसिएशन, एक एक्नॉलेजमेंट अगर मुझे कोई दे दे कि हाँ मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपको एज अ स्मॉल क्रिएटर आपको बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे. बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड अराउंड कि किसी के साथ देने से या किसी के साथ सही टाइम पे खड़े होने से कुछ ख़राब नहीं होता. मतलब आप सामने वाले, और फिर क्या होता है लोग जब हार जाते हैं ना, और फिर ऐसे ही लोग आके बोलते हैं अरे कोई बात नहीं हम देख रहे थे. अब तो हो गया ना. वो बंदा ऑलरेडी डिमोटिवेट हो गया है, मतलब he's left the floor, वो अब नहीं आएगा वापस. उसे हिम्मत जुटाने में बहुत टाइम लगता है. आप तब नहीं खड़े हुए थे. करेक्ट. तो आपके हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए इंस्टाग्राम पे? लाइक स्क्रॉल डाउन एंड नॉट टू स्क्रॉल डाउन, कि आपने अभी शुरू किया, 1 साल आपकी जर्नी शुरू हो गई है इंस्टाग्राम पे, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. आपके हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए एक इंसान को इंस्टाग्राम में टिके रहने के लिए? मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हो तो मेरे को लगता है कि 3 months इज़ मोर देन इनफ. आपका 3 months में पेज ऑलमोस्ट
30 के फॉलोअर्स तक जा सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली, मैं मिनिमम बता रही हूँ आपको, 50, हमारा 50 के प्लस था, Okay. बट आप 30 के तो आराम से रीच कर सकते हो. मतलब Okay. अगर आप डेली पोस्ट कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा अपनी स्टोरीज को भी एक्टिव रख रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत रख रहे हो, तो आप आराम से रीच कर सकते हो. बट आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. और बट मैं ये बोलूँगी, अगर इफ़ यू लुकिंग फॉर 3 month टारगेट फॉर अबाउट 30 के फॉलोअर्स, तो फिर उस सीन में आप ये मत सोचो कि आई हैव टू पोस्ट थ्राइस अ वीक. यू हैव टू पोस्ट एवरी डे. ओके. फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने आपसे बात की थी और पूछा था कि ऑर्गेनिकली ग्रो हुए हो, और आपने बोला था येस, एक सेकंड के लिए मुझे बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिकली ग्रो होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लोग आपको होल्ड करके नहीं रखते. अच्छा लगा, अभी अच्छा कंटेंट बना रहे हो, रहेंगे और फिर आपको अनफॉलो कर देंगे. सो आई थिंक आपके लिए ये जर्नी बहुत अच्छी थी और बहुत पॉजिटिवली आप आगे बढ़े हो इस जर्नी में. Thank you, and that's by the help of my family and by God's grace as well. ये मतलब ये जर्नी हमने भी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी यहाँ पहुँचेंगे, बट हम पहुँच गए. सो यस, मतलब कुछ तो लक भी होता है, कुछ बाबा जी की मेहर भी होती है. तो ये वो भी था. सिर्फ काम तो मैं, that's what I'm saying, सिर्फ काम सब कुछ नहीं होता, कुछ लक भी होता है. तो आपके हिसाब से आपने मैनिफेस्टेशन बराबर की थी. मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड मैनिफेस्ट करते हैं. that's what I told you. मैं तो बहुत जल्दी, आई एम अ पर्सन जो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती थी. अब नहीं होती, बिकॉज अब तो आई हैव सो मेनी फॉलोअर्स, इतनी जल्दी से अब नहीं होते. बट ही इज़ द वन जो मतलब होता है ना 10 के फॉलोअर्स में, आई वाज लाइक यार क्या चल रहा है, मतलब बोरिंग है, कुछ काम नहीं आ रहा. वेट, सबर, तू देख क्या होगा अब इसके बाद, तू देख. लाइक जो मुझे रोज एक स्टोरी सुनाते थे कि 50 के बाद ऐसा होगा, 100 के बाद ऐसा. वेयर एम आई सिटिंग टुडे, आई फील कि ये भी शायद उसी ने मैनिफेस्ट करा था कि ये भी होगा 100 के बाद. वर्क करता है, राइट? कोई अपने का मैनिफेस्टेशन. ऑफ कोर्स. सो आप करो या आपके साथ कोई करे, वो ज़रूर वर्क करता है. आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए. अगर कोई डीमोटिवेट हो रहा है, उनके लिए आप कुछ टिप देना चाहोगी? कंसिस्टेंसी तो है ही, उसके अलावा और आप क्या बताना चाहोगी वो लोग के लिए? बी अराउंड गुड पीपल. आप कभी डीमोटिवेट नहीं होगे. ओके. आई फील कि आप अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ो, अपने साथ अच्छे लोगों को लेके चलो. नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली प्रोफेशन, बट हाँ पर्सनल लाइफ में भी, अपने अराउंड, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स स्पेशली. आपके फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं, तो अपने आसपास अपने फ्रेंड्स ऐसे रखो जो आपको अच्छा आपके बारे में सोचें, आपको मोटिवेट करें. आप कभी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होगे. अगर आपका दोस्त खड़ा है ना आपके पीछे, जो बोल रहा है कि अरे मैं खड़ा हूँ, कुछ नहीं होता, क्या होगा, मैं रीशेयर कर दूंगा तेरा पोस्ट, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे. नाइस. कभी ऐसे टाइम भी आता होगा जो आपने रील बनाई और आपको बहुत अच्छी लगी हो, और आप ऐसा सोचोगे कि ये तो 1 लाख प्लस टच हो जाएगा, लाख हो जाएंगे, और जब आप उसको उस पर कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिवली नहीं मिलता है, तो आप किस तरह से उसको बदलने की कोशिश करते हो, या किस तरह से आप उसको देखते हो? ऐसा बहुत बार होता है. जो आप मोस्टली कंटेंट ऐसा ही होता है, मतलब एंटरटेनमेंट फील्ड में तो मैं स्पेशली बोलूँगी, जो हमने बहुत मेहनत से बनाई होती है ना, और बहुत दिल से, और ऐसा लगता है कि ये मेरी फेवरेट है, मेरा बेस्ट एक्ट था अभी तक का, वो कभी उठती ही नहीं है. उसको पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं एल्गोरिदम में पुश होने में, और जिसके बारे में आपने कभी कभी बिल्कुल नहीं सोचा था. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एक्चुअली. जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था. मतलब मैंने ऐसी एक रील रैंडमली पोस्ट करी थी अपने पेज से, बिजनेस पेज से, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई. पता नहीं होता लोगों को क्या पसंद आ रहा है. मे बी वी एक्चुअली हम अपने आप को जानते हैं, हम अपने आप को रोज़ कैमरा में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, हम अपने आप को एक लुक में पसंद करते हैं. बट लोग अलग होते हैं. आपको जो सामने बैठ के देख रहा है, उसको शायद आप किसी और लुक में, या किसी और चीज़ में, किसी और एक्सप्रेशन में पसंद हो. तो कोई भी चीज़ उठ सकती है. ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि ये उठ जाता है. बट हाँ,
हमने कभी कोई चीज़ एडिट नहीं करी, मतलब अगर नहीं उठी तो नहीं उठी। मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ हो गई आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ आप जो नया कंटेंट बनाओगे उसमें आप देख सकते हो कि हाँ वो क्यों नहीं उठी थी। मे बी उसका मतलब सॉन्ग ऐसा था कि शायद लोगों को वो यॉनर नहीं पसंद आ रहा है, या मे बी आपको लोगों को उस एरा के गाने नहीं समझ आ रहे हैं आपके आपके फॉलोअर बेस को, तो आप उस पर थोड़ा वर्क ऑन कर सकते हो अपने कंटेंट पे नेक्स्ट Okay. टाइम व्हेन यू पोस्ट। ओके, मैंने ये भी देखा है कि मॉडर्न बीवियाँ के फेसेस ऑन इंस्टाग्राम चेंज होते रहते हैं, वो आपके लिए कैसे काम कर रहा है? It has been working wonders. Mhm. तो the first phase we had, and इसके बारे में तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ आपको ये बात समझनी होगी एज अ व्यूअर कि मॉडर्न बीबियाँ इज़ नॉट वन पर्सनस फेस। सो मैं क्रिएटर ज़रूर हूँ पेज की, बट देर आर वेरियस फेसेस दैट आर पार्ट ऑफ मॉडर्न बीबियाँ। अभी भी शायद कोई और है। Soon we'll be posting another video with we have shot with some other person, that is also coming soon. तो ऐसा है कि अगर आप दिल से बीबी हो, very simply saying in पंजाबी, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬੀਬੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਪ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਆਈ ਲਾਈਕ talking about that, I'm a very spiritual BB person, but you want to cope up with the modern world, you are moving ahead like an empowered woman, then ਤੁਸੀਂ ਵੀ modern BB ਹੋ। You can be sitting right next to me next time, or maybe in any of our videos। तो मॉडर्न बीबी हर ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਬਟ yet she is very modern। Got it. सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो हमें कमेंट्स और डीएम्स कर रहे हो, देर इज़ नथिंग पर्सनल हेयर, कि कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल कि मेरे को ये शक्ल पसंद और ये नहीं पसंद, सो वी कीप समवन, वी वी चक समवन आउट। इट्स नॉट लाइक दैट। पीपल कीप कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम द पेज बिकॉज इट्स बिजनेस। तो लोग आएंगे और जाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आप वैसे ही एंटरटेन होते रहो जैसे हो रहे हो। वंडरफुल, आई लाइक इट। वैसे आप मॉडर्न बीवी हो या नहीं? मॉडर्न बीवी? That would be a question to my husband rather than me. But I feel he'll say yes, ओके। because मॉडर्न बीवी को हम कैसे रेफर करेंगे? हम कहेंगे एक वो बीवी जो घर भी देख रही है, और बट येट शी लाइक्स वर्किंग आउट। एक्चुअली शी इज़ नॉट ओनली वर्किंग, सिर्फ शी इज़ नॉट वर्किंग फॉर मनी, but she likes moving out, working। she is working as a maybe किसी जॉब में है या बिजनेस वुमन है। तो yes, I am a modern BV as well। Someone who always want to be on the move. Yes। Nice. So you have spoken about your triumphs. A lot of success also come through failures. It So does. what have yours been? There were a lot of times and lot of things that I myself have done, small businesses that I've started in last maybe 8 years, and but failures रहे हैं, but always एक चीज़ रही है, to look forward। अब क्या मतलब अगर ये फेल हो गया है, अब नुकसान तो हो गया, मे बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग हैज़ हैपेंड, बट अब नेक्स्ट में मैं व्हाट बेटर आई कैन डू, और मैं क्यों फेल हुई उन चीज़ों से, दैट आई ट्राई कि मैं उन चीज़ों से सीखूं एंड देन आई लुक फॉरवर्ड। तो Okay. फेलियर्स मेरे भी रहे हैं बहुत सारे, मतलब ऐसा एक नहीं मैं बोलूँगी, जॉब्स में और मे बी बिजनेसेस में, एंड बट for me my family was very very supportive। और इस सपोर्ट के लिए अगर आपकी या किसी की भी अराउंड है तो आपको इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। आई वुड से कि फॉर अ गर्ल हु इज़ मैरिड, आफ्टर मैरिज आपकी फैमिली का इतना बड़ा सपोर्ट होना कि मतलब आप फेल हो रहे हो, वो फिर आपको खड़ा कर रहे हैं, एंड एवरी टाइम यू स्टैंड अप। ऐसा अब आपको क्वेश्चन नहीं करते कि लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था, दे ऑलवेज लुक अप फॉर द न्यू थिंग दैट यू आर डूइंग। अच्छा अब ये करने का सोच रही है, सुन इसमें ना ऐसे कर लियो, वो पिछली बार ऐसे ख़राब हो गया था ना, अब ये सही हो जाएगा। So that's a big thing. So I would say to all the girls out there, to all the women out there who are married,
कि if you have such a family, appreciate, respect them, and they are a blessing. ओके, फैमिली का होना बहुत बड़ा सपोर्ट होता है ना हर काम में, स्पेशली हस्बैंड. Absolutely, यस, absolutely. गिरता है तो उठाएगा, अगर ऊंचे उठ रहे हैं तो तब भी उठा के बोलेगा उड़ मत. Absolutely. ये तो होता है. So they yes. know कि आपको कहाँ रोकना है, वो भी पता है उन्हें. करेक्ट. कि तो ये आप मतलब ओवर भी ये ना हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि Exactly. यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट अदर्स, क्योंकि आप तो, मैं एज आई सेड, आप तो रोज अपने आप को देख रहे हो, आप तो अपने आप को जज ही नहीं करोगे ना वो, बट आपको देख रहे हैं, जो सामने बैठ के देख रहे हैं वही आपको जज कर पाते हैं. ट्रू. आप अपने आप को जज करते हो कभी अपने काम को लेके? जज एज इन, मैं रोज एक बात तो जरूर बोलती हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ. जज करना एज इन, मैं अपने काम को लेके, हाँ, अगर मुझे कोई चीज़, जैसे मैंने कुछ पोस्ट करा या मैंने कुछ बनाया, उसका ड्राफ्ट देखने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब द वे आई एम परफॉर्मिंग, और मे बी इन एनी थिंग, इन फैक्ट इन माई लाइफ, इन माई डेली कोर्स और कुछ भी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे को ये नहीं सही लग रहा था, तो उसको जज करना ही बोलोगे. और हाँ, आई जज माई सेल्फ एंड आई ट्राई कि वो चीज़ ना हो दोबारा. इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे ड्राफ्ट पोस्ट भी नहीं करती, अगर मुझे नहीं पसंद आते तो आई जस्ट कीप इट. Okay, nice. How would you inspire women who are on the everyday move to start something on their own, a business? आई विल से कि एज एन इंस्पिरेशन, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई कैन बी एन इंस्पिरेशन और रोल मॉडल फॉर समवन, बिकॉज सबकी जर्नी अलग होती है, सबके एस्पेक्ट्स अलग होते हैं लाइफ के, नीड्स अलग होती हैं. तो बट येस, अगर आप कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ो फर्स्ट, पूरी नॉलेज गेन करो, एंड देन जस्ट डू इट. आप वेट मत करो किसी टाइम का या किसी चीज़ का कि अभी करूँगी, या जैसे मॉम्स दीज डेज आर लाइक, अभी मेरे बच्चे हैं तो अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर मैं ऐसा करूँगी. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो तो दे विल बी गॉन, लाइक वो बड़े हो गए, फिर दे विल हैव देयर ओन लाइफ, तब आपको लगेगा मैं तो रह गई पीछे. Correct. है ना. तो यू जस्ट डू इट, दैट्स द राइट टाइम. यू विल गेट हेल्प फ्रॉम समवेयर और द अदर. और बिकॉज आई एम समवन जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव है, और मैं आई बिलीव इन दैट. तो कहते हैं बाबा जी रास्ते अपने आप बना देते हैं, तो बन जाएंगे रास्ते. जस्ट लुक फॉरवर्ड, आप देखोगे रास्ते बन जाएंगे. आप करने वाले बनो और सही मैनिफेस्टेशन करो कि बस मैं जहाँ देख रही हूँ ना अपने आप को, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, और आप पहुँच जाओगे. वाह, ये सोच काफ़ी अच्छी है आपकी. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल बी हेल्पफुल विद दिस थॉट. लोगों को पता होता है बट करने में बहुत मुश्किल होती है ना. सोच सबकी होती है, बट जब कोई बोलता रहता है वो लोग उसे ग्रैब करते हैं और अपने आप में सीख लेते हैं. सो येस, thank you so much, Amanpreet, for believing in me and being a part of all that she wants. Thank you. Thanks to you for calling me here. You're such a sweet person. Seriously, you made me comfortable. First of all, that was such a nice thing, and thanks for having me. Thank you so much. Thank you. It was a very thoughtful and inspirational conversation. I hope both people who are on Instagram and not on Instagram would learn a lot from it. Thank you so much.